Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. So continuing our tradition that we are going to make a presentation to provide the introduction of the Islamic banking. The introduction of the three Islamic banking have been presented by our students. So this is the fourth Islamic bank, that is about the Mizan Bank, probably the biggest Islamic bank of the Pakistan. So there is a group who are going to present the introduction and along with the products of the Mizan Bank and how the Mizan Bank is a Sharia compliant bank. So these are the objectives of the presentation which is going to be held today by the group of the four students group, whose leader is the Liaquat Ali Mahar, is a group leader of this group. So I would like to invite Liaquat Ali Mahar to come on the dais and to continue the presentation on the Mizan Bank. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, Assalamu alaikum to everyone. I hope you all are having a fantastic day today. So me and my enthusiastic group members, we are here to share something related to Mizan Premier Islamic Bank. So my name is Liaquat Ali Mahar from Institute of Business Administration, Shah Abdul Latif, University Kharagpur, Miras, and these all are my group members. So Mr. Muhammad Afzal, please come on the stage, and other is Mr. Mushahid Hussain, please come on the stage, and Mr. Ubaidullah Abdo, please come on the stage. These all are my group members. We are work under the supervision of Professor Dr. Rahim Baksh Sumro. So thank you so much. So kindly take your seat. Thank you. Last week we have to meet with the Assistant Vice President of Mizan Premier Islamic Bank at the Regional Main Branch Sakkar about the core concept of Islamic financing, and those topics or terminologies we have to discuss in the class. We have to discuss in the class is like a mudarba, musharka, istisna, and the car ijara. So how the banking sector operate or run these all the terminologies. So it's like a car ijara, what is the main concepts of car ijara, and the process of car ijara, and rules of governing, and the termination process of car ijara. So without wasting our time, I come to the point. So first is introduction of Mizan Bank. इंट्रोडक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थोड़ा सा डिफरेंस आना चाहिए कि कन्वेंशनल और इस्लामिक में फ़र्क क्या है. सो मेन डिफरेंस ये है, कन्वेंशनल जो भी बैंक्स हैं वो फुल्ली एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे काम करती हैं, और इस्लामिक बैंक्स जो भी हैं वो एक इंटरेस्ट फ्री, इट मींस दैट सूद फ्री, मन सूद के बगैर काम करती हैं. इट मींस दैट प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग. Mizan Bank का ये इंट्रोडक्शन है. सिंपली Mizan Bank पाकिस्तान द बेस्ट बैंक एंड द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक ऑफ पाकिस्तान. सो जो हमारी अदर बैंक्स काम कर रही हैं पाकिस्तान में, इज़ लाइक दुबई इस्लामिक बैंक है, या फैसल बैंक है, या MCB इस्लामिक बैंक है, या अल बारका बैंक है. उस हिसाब से जो बैंक मीज़ान है वो पाकिस्तान की बेस्ट, फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक है, जो अकॉर्डिंग टू द शरिया ऑफ कंप्लायंस काम करती है. और नंबर सेकंड पॉइंट है, ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है विद पेड कैपिटल ऑफ Rs 17.9 बिलियन एंड हैज़ नेटवर्क ऑफ, इसका जो नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान लेवल पे वो 982 ब्रांचेस एंड इन मोर देन 327 सिटीज़ में काम कर रहा है. और उनके अलावा जो इसका ATMs रेशो है वो 1100 अक्रॉस द कंट्री है. पूरे कंट्री में जो इसका ATM रेशो है वो 1100 है. द कंपनी वाज फाउंडेड बाय इरफान सिद्दीकी, जो मेन इसका कॉन्सेप्ट या फाउंड की थी या ओनर है सिंपली मीज़ान बैंक का, वो है इरफान सिद्दीकी. इसने फाउंड की थी ऑन 27 जनवरी 1997 एंड इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन कराची, पाकिस्तान. Number other point is the bank operates strictly under the principles of Islamic Sharia and is well recognized for the products development capability, Islamic banking research and the advisory services. जो मीज़ान बैंक है वो स्ट्रिक्टली अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं कस्टमर्स को देने के लिए वो बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू द शरिया ऑफ कंप्लायंस. हैविंग द लार्जेस्ट ब्रांच नेटवर्क एंड प्रोडक्ट्स रेंज. और भी हमारे पाकिस्तान कंट्री में और भी इस्लामिक बैंकिंग काम कर रही हैं, उन सारों में से जो मीज़ान बैंक है उसका ब्रांच नेटवर्क सबसे ज़्यादा है, और प्रोडक्ट्स सर्विसेज दे रहे हैं वो भी सारों से डिफरेंट है. इट मींस दैट ज़्यादा है. बिगिंस इट्स ऑपरेट
इस मीज़ान बैंक ने ऑफिशियली मतलब ऑपरेट की थी पाकिस्तान में 2002 में, आफ्टर द ऑब्टेनिंग द इस्लामिक कमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस फ्राम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जो भी हमारे पाकिस्तान में काम कर रही हैं इस्लामिक बैंकिंग से हवाले, उन सारों की जो लाइसेंस होती है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से होती है। ये पाकिस्तान की बैंकिंग हिस्ट्री है। जो भी हमारे पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर काम कर रही हैं उसमें से बाकायदा फास्ट ग्रोइंग बैंकिंग एज आ फास्ट दौर काम कर रही है। और उनके अलावा है शेयर होल्डिंग ऑफ मीज़ान बैंक। सो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग कौन सी कंपनीज़ हैं मीज़ान बैंक से साथ? सो फर्स्ट है नूर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी जो कोयत की है, उसका जो शेयर है मीज़ान बैंक में वो है 49.11% है। और एन अदर कंपनी इज़ पाकिस्तान कोयत इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसका जो मीज़ान बैंक में शेयर है वो 30% है। और अदर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जिद्दा की है, उसका जो शेयर है वो 9.23% है। और उनके अलावा जो जनरल पब्लिक है उसका जो शेयर है मीज़ान बैंक में वो है 11.57%। और इसका विजन, मिशन और वैल्यूज़ क्या हैं? सिंपली जो मीज़ान बैंक है सिंपली एक एस्टेब्लिश मतलब एक इक्विटेबल इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट करना चाहती है। मतलब इस पाकिस्तान में हर बंदे, हर फ़र्द का जो पहला या फर्स्ट चॉइस हो वो मीज़ान बैंक हो, और ये अपनी सोसाइटी में एक फेयर एंड जस्टिस वाला सिस्टम ऑपरेट करना चाहती है। और इसका मिशन क्या है? सिंपली ये अकॉर्डिंग टू द इस्लाम काम कर रही है। ये अपने कस्टमर्स जो भी हैं उनको इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो इस्लाम की बाउंड्रीज़ हैं उसके मुताबिक। और इसका वैल्यूज़ क्या हैं? सिंपली इसका ये टोटली वैल्यूज़ हैं शरिया कंप्लेंट्स है, ये इंटीग्रिटी, सच्चाई, ईमानदारी के साथ काम कर रही है। और उनके अलावा सर्विस एक्सीलेंस, जो भी कस्टमर्स हैं इसका ये मेन वैल्यू है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस एक्सीलेंस प्रोवाइड करें। और उनके अलावा व्हाट दे ऑफ़र, वो क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं? सिंपली एक दो कैटेगरीज़ में है, एक पर्सनल में है, एक बिज़नेस में है। सो सिंपल पर्सनल में क्या क्या प्रोवाइड कर रही है? एक बैंक अकाउंट्स हैं, टर्म डिपॉजिट्स हैं, कंज्यूमर फिनांस है, वुमेन बैंकिंग है। और उनके अलावा बिज़नेस में क्या क्या प्रोवाइड कर रही है? सिंपली ये कॉर्पोरेट बैंकिंग प्रोवाइड कर रही है और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। और उनके अलावा कमर्शियल बैंकिंग है या SME बैंकिंग। SME बैंकिंग मीन्स स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ऑफ बैंकिंग। पर्सनल बैंकिंग में सिंपली क्या आता है? बैंक अकाउंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इट मींस दैट हम किसी भी टाइम 24/7 हम डिपॉजिट भी करवा सकते हैं कोई भी रकम, और विदड्रा भी करवा सकते हैं, और इसमें रिस्क थोड़ी कम होती है। और उनके अलावा आ जाता है सेकंड पे सेविंग अकाउंट्स। सेविंग अकाउंट सिंपली फॉर एग्जांपल मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ मीज़ान बैंक में। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में एज मैं रब्बुल माल कहलाऊँगा और जो बैंक है वो मुदारब कहलाएगी। कभी कभी बैंक जो है मीज़ान बैंक इंटरमीडिएरी तौर काम करती है। फॉर एग्जांपल मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है मीज़ान बैंक में, और जो बैंक है वो एज इंटरमीडिएरी तौर किसी थर्ड पार्टी को मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए या बिज़नेस के लिए वो डिपॉजिट्स देगी। सो हम दोनों के बीच में जो मीज़ान बैंक क्रिएट करेगी वो एज इंटरमीडिएरी कंपनी। उसके अलावा स्पेशल सेविंग अकाउंट्स है। स्पेशल सेविंग अकाउंट्स में मीज़ान बचत अकाउंट आ जाता है, लबेक अकाउंट है, सीनियर सिटीज़न अकाउंट। स्पेशल अकाउंट मीज़ान बचत अकाउंट इट मीन्स दैट ये लो इनकम वाले जो भी बंदे होते हैं उसको प्रोवाइड करती है। और उनके अलावा लबेक अकाउंट है या फैमिली या कोई फ्यूचर में किसी बंदे का प्लान होता है मैं उम्रा वगैरह करूँगा उसके लिए प्रोवाइड करता है। और सीनियर सिटीज़न इट मीन्स दैट जो पेंशन प्लान वगैरह होते हैं सो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। होम रेमिटेंस अकाउंट्स उसको कहलाता है कोई भी बंदा फॉरेन फॉर एग्जाम्पल अर्निंग के लिए या जॉब के लिए जाता है तो मीज़ान बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो ये सर्विस प्रोवाइड करती है होम रेमिटेंस अकाउंट्स को, ताकि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को एक अच्छी तरीके से फैसिलिटेट कर सके। और उसके बाद आता है मीज़ान आसान अकाउंट्स। मीज़ान आसान अकाउंट में सिंपली क्या होता है, एक इसका प्रोसीजर सिंपल आसान होता है, या CNIC वगैरह लेके सिंपल, या कोई फ़ोटोग्राफ होती है, ये साइज़ होती है सिंपली उस हवाले से करती है। और नेक्स्ट सो आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर मोहम्मद अफजल। Assalamu alaikum everyone, it's me Mohammad Afzal Sumro. Now I am going to define term deposits of Mizan Bank. So here
Mizan Bank provides long-term and short-term deposit products with flexibility of 1 month, quarter, semi-annually, annually deposit plans. Here we have first one is monthly Mudarba certificate. It is also a type of service and a product जिसमें हम क्या करते हैं कि हम पैसे जमा करवाते हैं। मुदारबा जैसे होता है कि मुदारबा का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम पैसे डिपॉजिट करवाते हैं तो हम एज अ रब्बुल माल कहलाते हैं, और जब बैंक हमसे वो पैसे लेकर किसी और वर्किंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करती है तो वो मुदारब कहलाती है। ये जो मंथली मुदारबा सर्टिफिकेट है ये शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट की किस्म है जिसमें हमें मंथली रिटर्न्स मिलती हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट। सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट इसमें क्या होता है कि ये जो है वो जो पहले हमने डिफ़ाइन किया मंथली मुदारबा सर्टिफिकेट, उससे बढ़कर इसकी टाइम पीरियड या टेन्योर होता है जिसका टाइम पीरियड 3 मंथ से लेकर 1.5 ईयर तक होता है, जिसमें ये पैसे बैंक वाले पैसे अपने पास रखते हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हैं वर्किंग कैपिटल्स में और हमें रिटर्न्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट फॉर सीनियर्स। जैसे हमने ये डिफ़ाइन किया ये भी इसके जैसे ही, मगर ये जो है वो सीनियर्स के लिए हैं जिसकी एज अप टू 60 ईयर्स या उससे अबव होती है, या उसके अलावा जो विडोज़ वगैरह हैं या जो डिसेबल पर्सनस हैं ये सर्विस उनके लिए होती है। इसमें भी जो है हमें पीरियडिकली रिटर्न्स मिलती हैं। उसके बाद आ जाता है मीज़ान हमदान सर्टिफिकेट। नाउ ये जो प्रोडक्ट का किस्म है इसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसमें खास करके वो इन्वेस्ट करते हैं जो कि कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हो या डेली एम्प्लॉयड पर्सनस हो या उसके अलावा जो सैलरीड पर्सनस हो वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि इनको जो हायर रिटर्न्स मिल सकें। इसके बाद आता है मीज़ान हमदान सर्टिफिकेट फॉर सीनियर्स। ये भी सेम ही है, बस सीनियर्स जैसे मैंने पहले डिफ़ाइन किया कि 60 तक उनकी एज हो या उनसे बढ़कर एज हो। फिर उसके बाद आता है डॉलर मुदारबा सर्टिफिकेट। अब डॉलर मुदारबा सर्टिफिकेट में इसमें क्या होता है कि हम अपने डॉलर्स जो हैं वो मीज़ान बैंक में जमा करवा सकते हैं जिस पे हमें मंथली रिटर्न्स मिल सकती हैं। देन कंज्यूमर फाइनेंस। नाउ मीज़ान बैंक ऑफर्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स टू मीट स्पेसिफिक नीड्स ऑफ देयर इंडिविजुअल कस्टमर्स, जिसमें फर्स्ट वन है कार इजारा। अब कार इजारा जो है वो मीज़ान बैंक का जो इस्लामिक मूड्स ऑफ फाइनेंस है वो इजारा पे बेस करता है। इजारा मीन्स लीजिंग, जिसमें हम क्या करते हैं कि मीज़ान बैंक के साथ एक रेंटल एग्रीमेंट करते हैं। इस रेंटल एग्रीमेंट में मीज़ान हमारे लिए कार खरीदेगा, कार खरीदने के बाद वो एक कस्टमर को देगा। फिर उसमें क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम टेन्योर या पीरियड डिसाइड होगा अप टू 1 to 5 ईयर्स, जिसमें क्या होगा कि अगर इजारा का टाइम पूरा होता है तो फाइनल में वो प्रोडक्ट एज अ टोकन या गिफ्ट हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है अपनी बाइक। ये अपनी बाइक जैसे ये इसमें क्या होता है कि हम इंटरेस्ट फ्री बाइक ले सकते हैं मीज़ान बैंक से। इसमें ये होता है कि ये इस्लामिक मूड्स ऑफ फाइनेंस मुसव्वमा पे काम करता है। इसमें क्या होता है कि मीज़ान बैंक हमारे लिए एक प्रोडक्ट खरीदेगा और इसमें वो हमें देगा। और मुसव्वमा का कॉन्सेप्ट ये है कि मीज़ान बैंक एक होता है इस्तिस्ना और दूसरा होता है मुसव्वमा। मुसव्वमा में ये होता है कि बैंक हमारे लिए प्रोडक्ट्स या गुड्स तो खरीदेगी मगर जो है इसकी फ़ाइनल प्राइस हमारे साथ वो डिस्क्लोज नहीं करेगी, इसलिए हम अपनी बाइक भी उनके साथ ये। इसके बाद होता है कंज्यूमरीज़ में जो है ना बैंक हमें फाइनेंशियल प्लान प्रोवाइड करती है जिसमें हमें वो ये सहूलत देती है कि कस्टमर जो है वो अपने ड्यूरेबल गुड्स यानी कि जो घर में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें जैसे जनरेटर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर वगैरह, इस प्रोडक्ट में हमें वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसके ज़रिए वो चीज़ें हम खरीद कर सकते हैं। उसके बाद आता है ईजी होम। अब ईजी होम में जो है मीज़ान बैंक वो इस्लामिक मूड्स ऑफ फाइनेंस का जो है डिमिनिशिंग मुशार का इस्तेमाल करती है। इसमें क्या होता है कि जब वो हमारे लिए घर खरीदेगी तो वो हमारे साथ को पार्टनरशिप करेगी। पार्टनरशिप इन सेंस के आधा पैसा हमारा और आधा पैसा मीज़ान बैंक का। फिर जो मीज़ान बैंक का पोर्शन होगा उस पर हम उसको रेंटल भी देंगे और आहिस्ता आहिस्ता उनके जो उनका जो पोर्शन है उनको रेंटल भी देंगे। उस पोर्शन को हमें ख़रीदने के लिए
3% या 4% हर बार उनका जो इक्विटी परसेंटेज है वो भी खरीदना पड़ेगा और फाइनल में वो प्रोडक्ट हमारी हो जाएगी। इसके बाद होता है मीज़ान सोलर। अब मीज़ान सोलर में क्या होता है कि मीज़ान बैंक इसमें ये सर्विस प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है जिससे हमें वो पैसे देंगे जिससे हम घर के लिए जो है एनर्जी वगैरह के लिए सोलर प्लांट लगवा सकें। इससे क्या होगा कि जो हमारा बिजली का बिल है वो 50% तक कम आएगा और हमारी सेविंग होगी, इससे हमें फ़ायदा होगा और मीज़ान बैंक को भी फ़ायदा होगा। अब इसके बाद आता है वुमेंस बैंकिंग। वुमेंस बैंकिंग में मीज़ान बैंक ने पहली बार ये अकाउंट प्रोवाइड किया था वुमेंस के लिए, ताकि जो बैंकिंग नीड्स हैं वो वुमेंस की वो ठीक है सर। ठीक है ये कंज्यूमर फाइनेंस हो गया। उसके बाद आता है वुमेन बैंक। वुमेन बैंक में मीज़ान बैंक वुमेंस के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जिसमें ये चीज़ें आती हैं की फीचर्स, जिसमें फ्री चेकबुक उसको प्रोवाइड किया जाता है, वुमेंस को फ्री पे आर्डर्स मिलते हैं, वुमेंस को फ्री इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज 24/7 मिलता है। उसके अलावा विथड्रॉल्स, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन विथड्रॉल्स और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। उसके बाद मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। उसके बाद आ जाता है SME बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसमें मीज़ान बैंक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करती है और ये पोर्शन जो है फर्दर इसको मुशाहिद हुसैन कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ बेटा कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में हमारे पास पहले आ रहा है मुदारबा में जो हमारे पास मुदारबा का इट मीन्स सिंपली अ ट्रांजेक्शन. It means simply a sales transaction where the sellers or bank discloses the cost and profit to the buyer at the time of execution. तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमारी बैंक कोई भी चीज़ हमें दे रही होती है तो वहाँ पे हमें कॉस्ट जो कि वहाँ पे पे कर रही होती है गुड्स की, वो भी हमें पता चल जाती है और यहाँ पे वो प्रॉफिट जो मार्जिन रख रही होती है वो भी हमें बता देती है, डिस्क्लोज कर देती है। तो उसके बाद purchases the product from market through its agent which may be the customer, subsequently sells it to the customer on the support or deferred price. तो ये जो प्रोडक्ट्स बाय करती है वो बैंक नहीं करके देखती, यहाँ पे एक जो कस्टमर होता है उसको ही एजेंट बना के बैंक वहाँ से मार्केट से ये परचेज करवा लेती है। तो इसमें ये जो मुदारबा है इसमें और कन्वेंशनल में क्या फ़र्क है, ये जो मुदारबा है इसमें ये सेल्स एंड बाय का प्रोसेस होता है और वो जो कन्वेंशनल होता है उसमें इंटरेस्ट बेस्ड होता है। तो यहाँ पे अगर हमारी पेमेंट में लेट हो जाती है तो फिक्स्ड होती है रेट, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते और कन्वेंशनल में एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाती हैं जैसे कि इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा होता है। तो उसके बाद हमारे पास आ रहा है तिजारा सिंपल लिया गया है तिजारत से। तिजारत यहाँ पे ये देखा रहा है कि मीज़ान तिजारा इज़ अ सेल्स एंड एजेंसी बेस्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर द कस्टमर हु सेल फिनिश्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। ये जो होती है ये हमारे पास कस्टमर के लिए एक सेल्स एंड एजेंसी बेस्ड फाइनेंसिंग सर्विसेज होती हैं। तो फाइनेंसिंग सर्विसेज होती है जो कि कस्टमर्स को गुड्स सेल करती है क्रेडिट बेसिस पे, कस्टमर को गुड सेल करती है क्रेडिट बेसिस पे। अंडर दिस कॉन्सेप्ट द बैंक विल परचेज द फ्रेश गुड ऑफ द कस्टमर एंड विल अपॉइंट द कस्टमर एज इट्स एजेंट टू सेल द सेम गुड्स इन द मार्केट ऑन क्रेडिट बेसिस। तो बैंक ये जो गुड्स परचेज करती है, फिनिश गुड्स परचेज करती है और वही उसी कस्टमर को अपॉइंट करती है एज एन एजेंट उसी सेम गुड्स को मार्केट में सेल करने के लिए। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है इस्तिस्ना।
इस्तिस्ना सिंपली इस्तिस्ना की जो मीनिंग है वो कह रहा है, इस्तिस्ना इज एन अरबिक वर्ड मीन्स आस्किंग समवन टू मैन्युफैक्चर। तो इस्तिस्ना की मीनिंग ये है कि किसी को हम ऑर्डर दे रहे होते हैं कि हमारी ये जो प्रोडक्ट्स हैं उसको मैन्युफैक्चर करें। तो उसके बाद इट इज़ अ शॉर्ट टर्म फैसिलिटी इन विच द बैंक ऑर्डर्स द मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चर द गुड एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ लोकल एक्सपोर्टर ऑर्डर। तो ये जो हमारे पास इस्तिस्ना है उसमें बैंक ऑर्डर कर रही होती है कि मैन्युफैक्चर को के गुड्स को मैन्युफैक्चर करे एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ लोकल और एक्सपोर्ट क्वालिटी, जो कि जिस क्वालिटी की हमारी नीडेड होगी वो उस क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चर करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पे द गुड्स आर देन डिलीवर्ड टू द बैंक पे पास ये जो गुड्स होते हैं वो बैंक अपने हैंड ओवर कर लेती है। उसके बाद आफ्टर टेकिंग द डिलीवरी दीज गुड्स आर लोकली सोल्ड आर एक्सपोर्टेड बाय द कस्टमर एक्टिंग एज बैंक एजेंट। तो उसके बाद जब ये जो गुड्स हमें बैंक के पास हैंड ओवर हो जाते हैं तो बैंक क्या करती है, इसको लोकली या अगर ये लोकल गुड्स होंगे, लोकली स्पेसिफाइड होंगे तो ये लोकली मार्केट में सेल करवाती है या फिर इसको एक्सपोर्ट करवाती है कस्टमर के थ्रू, जो कि यहाँ पे एक्टिंग एज एन बैंक एजेंट वर्क कर रहा होता है। तो उसके बाद हमारे पास आता है मुसवामा। मुसवामा इट इज़ सिंपली एज ए मुदारबा, इट इज़ सिंपली एज ए मुदारबा। ये मुदारबा की ही तरह होता है, लेकिन मुदारबा में क्या हो रहा था, वहाँ पे हमें कॉस्ट भी डिस्क्लोज कर रही थी बैंक, और उसके बाद हमारी जो प्रॉफिट मार्जिन वो रख रही थी वो भी हमें बता रही थी। पर यहाँ पे मुसवामा है, इसमें बैंक हमें ये नहीं बताती कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है कितने की हमें मिल रही है और उसके बाद उसके ऊपर कितना हमें प्रॉफिट रख रही है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ है जो हमें मिल रही है 100 रुपये की, एक पेन है हमें 100 रुपये की मिल रही है, पर हम जो कस्टमर को दे रहे होते हैं वो 150 रुपये में दे रहे होते हैं। कस्टमर को हम ये नहीं बताते कि ये हमारी प्रोडक्ट है, ये हमें 100 रुपये में मिल रही है और हम आपको फिर 150 में क्यों दे रहे हैं। तो सिंपली ये भी यही बता रहा है कि बैंक यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करती उसका कॉस्ट एंड प्रॉफिट टू द कस्टमर। मुसवामा इज़ अ टर्म यूज्ड इन इस्लामिक फाइनेंसिंग, ये इस्लामिक फाइनेंसिंग में यूज़ किया जाता है। इट इज़ डिस्क्राइब अ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच द बायर डज नॉट नाउ द प्राइस पेड बाय द बैंक। जो बैंक ने प्राइस आगे पे की हुई है गुड्स की, वो बायर को पता नहीं होती कि कितनी प्राइस उन्होंने पे की हुई है। तो ये जो कस्टमर है ना, कस्टमर को सिर्फ उसकी प्राइस पता होती है कि जिस प्राइस पे हमें बैंक उसको दे रही होती है। तो बैंक ने आगे क्या पे किया है उसको कस्टमर को नहीं मालूम होता। पेड बाय द बैंक टू क्रिएट एंड ऑब्टेन द गुड वगैरह, ये जो हमारे बैंक ने आगे पे की हुई है। उसके बाद है मुदारबा। मुदारबा सिंपल एक पार्टनरशिप होती है जिसमें एक पार्टनर होता है एज एन इन्वेस्टर और दूसरा पार्टनर होता है एज ए वर्कर, जिसको हम एम्प्लॉय वगैरह कह सकते हैं, वर्किंग पार्टनर जिसको हम कह सकते हैं। तो मुदारबा में पार्टनरशिप होती है, वन पार्टनर गिव्स मनी। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने मुझे बैंक पैसे दे दिए और मैं उसका एज ए वर्किंग पार्टनर बन के मैं उसके बिजनेस को रन कर रहा हूँ। और यहीं पे हमारे पास कभी कभी बैंक एज एन इन्वेस्टर भी वर्क करती है और एज एन वर्किंग पार्टनर वर्क करती है। तो यहाँ पे जो पैसे दे रहा होता है उसको हम कहते हैं रबुल माल, और जो वर्किंग कर रहा होता है उसको हम कहते हैं मुदारिब। तो it is a kind of partnership where one partner gives money to another for investing in commercial enterprises. The investment comes from the first partner who is called रबुल माल, जिसकी तरफ से हमें इन्वेस्टमेंट मिलती है उसको हम रबुल माल कहते हैं। while the management and work and exclusive responsibility of the other who is called मुदारिब, जो दूसरा होता है वो वर्क कर रहा होता है उसको हम मुदारिब कहते हैं। देन हमारे पास आ जाता है मुशारका। मुशारका भी एक पार्टनरशिप होती है। मुशारका इज बेसिकली kind of partnership in which the partners join together with the different contribution। यहाँ पे different contributions होती हैं और उसके बाद work or obligation for the common objectives for undertaking business and trade in accordance with the principle of sharia। शरिया के मुताबिक ये हमारी पार्टनरशिप होती है। इसमें यूँ होता है कि दोनों पार्टनर्स को इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, तो कैपिटल शेयरिंग भी यहाँ पे हो जाती है, तो इसको हम मुशारका कहते हैं। ये सिंपल है, मुदारबा और मुशारका दोनों पार्टनरशिप्स ही है। पर वहाँ पे क्या था, एक पार्टनर इन्वेस्ट कर रहा था और दूसरा वर्किंग कर रहा था, और यहाँ पे दोनों को ही रिस्पॉन्सिबल होना है। देन फर्दर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग विल बी डिस्कस्ड बाय मिस्टर उबैदुल्लाह अब्रो। Long-term
Financing needs may be in the form of acquisition of assets like property, machinery, equipments or wheels. Following are the two major products used to cater such needs. Diminishing मुशारका। डिमिनिशिंग मुशारका में क्या होता है कि बैंक जो है मीज़ान बैंक जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के तहत वो कस्टमर से मिलकर जो है एक असेट खरीद करता है, जिसमें कुछ जो है ओनरशिप जो होती है वो बैंक की होती है और कुछ ओनरशिप जो है वो कस्टमर की होती है। और जो है कस्टमर बैंक क्या करती है, वो बाद में असेट खरीद करके वो कस्टमर को दे देती है और कस्टमर जो है वो उसके इंस्टॉलमेंट के साथ साथ उसकी सॉरी बनना तो सही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो है जॉइंट ओनरशिप बैंक जो है वो कस्टमर्स के साथ मिलकर जॉइंट ओनरशिप में जो है असेट खरीद करता है और बाद में वही असेट जो है कस्टमर को लीज़ करता है, उसको रेंट पे दे देता है। वो कस्टमर क्या करता है, बाद में जो है मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ सम यूनिट्स ऑफ जो है उसके ओनरशिप के जो है बैंक के वो खरीद करता जाता है और बाद में जो है बैंक अपनी ओनरशिप जो होती है वो कस्टमर को ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद है इजारा। इजारा में क्या होता है, इजारा टेक्निकली मीन्स टू गिव समथिंग ऑन रेंट। द बैंक यूजेस दिस प्रोडक्ट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग purposes where the bank acquire the assets required by the customer and then leases it to the customer for a fixed period. This product is used for the financing of assets such as plant, machinery, generators, equipments. इजारा में क्या होता है, बैंक जो होता है कस्टमर के साथ कस्टमर की रिक्वायरमेंट में जो एक कस्टमर जिसको कोई रिक्वायरमेंट जैसे गाड़ी या कोई इक्विपमेंट या कोई असेट जो उसको रिक्वायर्ड होता है वो बैंक के पास जाता है और बैंक से एग्रीमेंट करता है। एग्रीमेंट के तहत वो बैंक क्या करती है, वो असेट खरीद करती है मार्केट से, फिर जो है वो असेट्स जो है वो कस्टमर को दे देती है और कस्टमर को मंथली इंस्टॉलमेंट्स पर वो रेंट पे दे देती है और कस्टमर क्या करता है वो इंस्टॉलमेंट्स जो है वो पे करता रहता है विद सम ओनरशिप यूनिट्स ऑफ ओनरशिप। थैंक यू। यस, एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क। आपने बताया कि जब बैंक हम डिपॉजिट करते हैं अपने पैसे तो आप रब्बुल माल बन जाते हैं और बैंक मदारिब बन जाती है, ठीक है। तो ये इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है। मुझे आप ये बताएं, जब बैंक रब्बुल माल बन जाती है और किसी और को पैसे देती है, उसको मुदारिब बनाती है, तो आपको प्रॉफिट कितना मिलता है? क्योंकि प्री एग्रीड रेशो होता है डिफरेंट बैंक्स का, लेकिन इनका फ़िक्स है, तो आप उस हिसाब से बताएं। 18% है मेरे ख्याल में। जो 15 और 20 के बीच में रेंज में होती है वो डिफरेंट होती है, वो अकॉर्डिंग टू द PLS, वो दोनों पार्टीज़ के बीच में जो भी रेशो सिलेक्ट होता है वो उसके हिसाब से ही प्रॉफिट देंगे। अनदर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने बताया कि कार इजारा वो बैंक जो है ना एक फाइनेंसिंग करती है कार की, और वो कन्वेंशनल बैंक भी वो ऐसे ही उसका ही प्रोसीजर है, वो भी फाइनेंसिंग करती है, वो भी प्री एग्रीड जो है मतलब वो रिटर्न लेती है, मतलब इंटरेस्ट की सूरत में वो मीज़ान बैंक भी ले रही है। इसमें कोई डिफरेंस, कोई यूनिक चीज़ कोई हो तो आप बताएं प्लीज़। इसमें यह डिफरेंस है कि जो मीज़ान बैंक या इस्लामिक बैंक कोई भी होती है तो वो मिनिमम सिक्योरिटी हमसे कस्टमर से चार्ज करती है। उसके अलावा जो है बैंक इस्लामिक बैंक विद होल्डिंग टैक्स रख, जब तक कोई प्रोडक्ट जैसे आपने कहा कार आपके क्लाइंट के पास नहीं आ जाती तब तक कोई इंस्टॉलमेंट स्टार्ट नहीं होती। उसके अलावा क्या होता है, इसमें क्विक प्रोसेस होता है, बस यही फ़र्क है कन्वेंशनल इस्लामिक बैंक। कह सकते हैं जो मेन डिफरेंस है कन्वेंशनल और इस्लामिक का ये है कि दोनों में 30% कन्वेंशनल भी लेती है कस्टमर से और मीज़ान भी लेती है। जो मेन डिफरेंस ये है कि कन्वेंशनल वाले क्या करते हैं, जब एग्रीमेंट हो गया, गाड़ी पहुंची नहीं कस्टमर तक, तब तक उसके जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो शुरू हो जाती हैं। और इस्लामिक में ये फ़र्क है कि सिंपली जब तक गाड़ी उसके हाथ में या की वगैरह नहीं देते तब तक इंस्टॉलमेंट्स नहीं स्टार्ट होती। बस यही डिफरेंस है और कोई नहीं। प्रोसीजर तो सेम ही हुआ ना, वो तो कन्वेंशनल बैंक में से ही करती है। और भी इसमें एक डिफरेंस है, ठीक है, और भी इसमें ये डिफरेंस है कि जब भी कोई नुकसान हो जाता है, गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मसला हो जाता है, तो कन्वेंशनल बैंकिंग में उसकी जो इंस्टॉलमेंट हैं वो स्टॉप नहीं होती।
और जो इस्लामिक बैंकिंग में होती है वो स्टॉप हो जाती है जब तक फिर जो है ना वो कार यूज़ में आ जाए, तब तक वो स्टॉप होती हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि देखें आप, इस्लामिक बैंक तो बहुत सारे हैं यहाँ पाकिस्तान में, यहाँ कहीं और भी, लेकिन जैसे मीज़ान बैंक है आपका, मीज़ान इस्लामिक बैंक, और हमारा MCB इस्लामिक बैंक, तो इस टाइप के मतलब बहुत सारे हैं। तो हम क्यों मतलब आपके मीज़ान बैंक को क्यों चॉइस करें, क्या वजह है? आप एक मतलब बहुत इफ़ेक्टिव और मतलब हमें गाइड करें, क्यों हम आपकी बैंक को यूज़ करें? क्या वजह? सिंपली मीज़ान बैंक जो है दूसरी इस्लामिक बैंक से डिफरेंट है, इसलिए वो पाकिस्तान की लीडिंग इस्लामिक बैंक है। उसके अलावा जो है ये कस्टमर सर्विस पे ज़्यादा ध्यान देती है एज़ कम्पेयर टू अदर इस्लामिक बैंक्स, इसलिए अगर आप हमारी बैंक चूज़ करेंगे तो यू विल बी सेटिस्फाइड, आई थिंक सो। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है आपसे। आप मुझे ये बताएं कि मीज़ान बैंक का जो असेट साइड प्रोडक्ट्स हैं उनमें से कोई भी एक दो बताएं। प्रोडक्ट्स ये असेट साइड ये डिमिनिशिंग मुशार का जो हो गया, ये प्रोडक्ट है इसकी, ये असेट पे काम करती है, कार जैसे हो गया, वो आपके लिए कार खरीदेगी जिसमें जॉइंट ओनरशिप होगी। अच्छा अफजल, आपके टॉपिक में वो जो बैंकिंग वाली थी, वुमेन बैंकिंग, वो ज़रा चला दें स्लाइड। एक स्लाइड पीछे, ये वुमेन बैंकिंग लास्ट वाला जो था मीज़ान सोलर, उसमें आपने बताया था कि वो मतलब के फंड्स प्रोवाइड करते हैं, उससे मतलब कि जो हम यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी लेकर के 50% हमें प्रॉफिट होता है, 50% मीज़ान बैंक वालों को। 50% मैंने प्रॉफिट का नहीं बोला, मैंने बोला कि 50% आपकी जो कास्ट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे आपने अगर वो प्रोडक्ट मीज़ान से ख़रीदी, क्योंकि ये प्रोडक्ट खरीदने के बाद आप सोलर पैनल पे काम लगाएंगे, फिर तो बिजली का बिल आपका कम आएगा इस कंपेयर टू पहले से, इसलिए आपका 50% प्रॉफिट आएगा, मतलब आपकी कॉस्ट घट आएगी। Thank you very much, all of you, that you have given the wonderful presentation, and some of the questions were also asked from the students. So there is basically the essence which I want to take from you, that you put your maximum effort in making your presentation successful. Right today, it was also a wonderful presentation, and I can congratulations to all of you that you have done a great job. Okay, so thank you very much, and very soon we will meet in another presentation in this class. Thank you very much for all of you.